contour dresses part 2. We have already discussed about that. Earlier in this chapter, what has happened? Vanda has left the town. Her father has sent or informed the school authorities through a letter that they are going to leave this school. None of his children will come to school, and he also has said that they are moving to a big city where no one will make fun of their names, because there are lots of funny names in those big cities. This actually was an insult, you can say, to the school where his children were being teased for their names only. So this has concluded, and now as Peggy and Maddie have heard the letter or heard the intention or heard the information about Vanda, Maddie is feeling very guilty. She actually is thinking of going to meet Vanda and apologize to her that they were sorry for their behavior, and also they wanted to inform that she has won a drawing contest. So actually they were trying to make up things between them. That means Maddie and Vanda. Now after that, when school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casuality, let's go and see if that kid has left town or not. जब स्कूल खत्म हो गया, दोपहर में पैगी एक दिखावटी सामान्यता के साथ बोलती है कि चलो चलकर देखते हैं कि वो लड़की शहर छोड़कर चली गई या नहीं. This statement says a lot about Peggy. ये स्टेटमेंट पैगी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बता रहा है कि पैगी को भी शुरुआत में आपने देखा इस चैप्टर की शुरुआत में कि पैगी को कुछ अकॉर्डिंग टू मैडी शायद पैगी को कुछ महसूस नहीं हो रहा था उसके बारे में, उस वेंडा के चले जाने के बारे में, लेकिन ऐसा था नहीं. ऐसा कुछ था नहीं. सो पैगी को भी अब ये महसूस हो रहा था. पैगी भी इस चीज को फील कर रही थी कि शायद कहीं ना कहीं वो ही कल्प्रिट है इस चीज के लिए कि बेटा स्कूल छोड़कर गई. तो इसीलिए शायद वो गिल्ट फील में ये कह रही है मैडी को कि चलो चलकर देख कर आते हैं वो बच्ची स्कूल छोड़कर गई है कि नहीं. सो पैगी had the same idea. Maddie glowed. That was really positive. तो पैगी अब इस बात को लेकर काफी खुश हो गई थी कि उसका और पैगी का सेम सोच, एक जैसी सोच चल रही थी. मैडी खुश हो गई. ग्लोड मतलब खुश होना, ग्लोड और पैग जो है ठीक था. The two girls hurried out of building up the street toward Walkinside, the part of town that was such a forbidding air of this kind of lumber after drizzly, damp and dismal. वो दोनों लड़कियां तेजी से अपनी स्कूल बिल्डिंग से निकलती हैं और वॉकिंसाइड की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ जाती हैं. वो शहर का एक ऐसा हिस्सा था, ठीक है, पार्ट ऑफ टाउन, सच अ फॉरबिडिंग एयर. वो शहर का एक ऐसा हिस्सा था जिसके जो एक ऐसी फॉरबिडिंग एयर, फॉरबिडिंग मतलब होता है ऐसी जगह जहां जाना मना हो, वो एक ऐसी फॉरबिडिंग हवा में अपने आप को लपेटा हुआ था. और स्पेशली नवंबर के इस समय जब ड्रिज़ली मतलब बारिश होना, बूंदाबांदी होना, डैम्प एंड डिस्मल. डैम्प मतलब होता है उदासी भरा या गीला, डिस्मल मतलब होता है उदासी भरा. तो वो इलाका जो वॉकिंसाइड का इलाका ही था वो अलग सा दिख ही रहा था. ऐसा लग रहा था मानो वो उदासी की चादर ओढ़े हुए है. Well, at least said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb, and gee, look how she can draw. Peggy, यहाँ पर अभी भी ये कहा जा सकता है कि उसे काफी तकलीफ हुई है. वो काफी गिल्ट महसूस कर रही है और इसलिए वो अपने मन से बोझ उतारने के चक्कर में ये सेंटेंस कह रही है और कहती है कि कम से कम, ठीक है, कम से कम मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो एक फॉरेनर है, एक विदेशी है,
और मैंने उसके नाम का कभी मजाक भी नहीं उड़ाया। मुझे नहीं लगता या मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस बात का अंदाज भी होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुझे तो वो बहुत बेवकूफ लगती थी, लेकिन देखो तो वो कैसा ड्राइंग कर सकती है। Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. Maddie कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो केवल सुनते जा रही थी। Maddie कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो केवल इसी बात की आशा कर रही थी कि वो लोग को वैंडा मिल जाए। वो केवल उससे माफी मांगना चाहते थे इस बात के लिए कि उन लोगों ने उसे चुना और उसे उसका मजाक उड़ाया, और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताना चाहते थे कि पूरा स्कूल उसके बारे में कितना अच्छा सोचता है और वो शहर छोड़कर न जाए। सारा का सारा स्कूल उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करेगा। वो और पैगी जो है वो लोग, अगर कोई ऐसा जो कि उनके साथ वैंडा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, वैंडा या उसके भाई के साथ, तो पैगी और मैडी उनके साथ लड़ाई करेंगे, यानी वो लोग उनकी सुरक्षा देने के लिए सोच रहे थे। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. वो लड़कियां तेजी से आगे बढ़ती हैं। उन लोगों को आशा थी या वो चाहते थे कि वो अंधेरा होने से पहले पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाए। I think that's where the Petrovskys live, said Maddie, pointing to a little white house with the old grass stuck up and there along the pathway like thin pickens. The house and its vast little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Vanda's once dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. तो वो लोग पहुंच गए हैं। अब वहां पर मैडी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वही घर है जहां पेट्रोन्स्की यानी वैंडा पेट्रोन्स्की और उसका परिवार रहते हैं। एक सफेद घर की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, वहां पर जो चलने का जो पाथवे होता है, ठीक है ना, मतलब जैसे कोई घर है और उस घर में पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है, उस रास्ते में लोग पत्थर बिछा देते हैं ताकि रास्ता जो है प्लेन हो जाए, उस पर घास ना उगे। लेकिन वो पत्थर जो है उनके बीच में भी छोटे छोटे गैप्स होता है और उनके बीच में से घास उग आता है। तो ये उसी के बारे में कह रहे हैं कि वहां पर ग्रास जो है, विस्क ऑफ ग्रास, गुच्छे, घास के गुच्छे पाथवे में जहां तहां उग आए थे और ऐसा लग रहा था मानो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे रास्ते में हों। वो जो हाउस है और उसका जो छोटा सा अहाता था वो साफ सुथरा था लेकिन थोड़ा उदास सी भरा था। उसे देखकर मैडी का वो ब्लू ड्रेस उनको याद आ गया, या मैडी को वो ब्लू ड्रेस याद आ गया जिसमें मैडी एक कॉटन रंग का ब्लू ड्रेस पहनती थी। वो उदासी भरा था, धुंधला था लेकिन साफ सुथरा था। वैसे ही उनका अहाता, घर का जो अहाता है वो भी वैसे ही साफ सुथरा था लेकिन थोड़ा उदासी भरा था। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and noticed there. वो लोग वहां घर पहुंचे तो देखा कि वहां घर में जीवन का कोई पद चिन्ह नहीं था। जीवन का मतलब कोई ऐसा सिंबल नहीं था, कोई ऐसा संकेत नहीं था जिससे लगे कि कोई वहां पर रह रहा है। पैगी ने दरवाजे पर खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैडी और पैगी वो लोग घर के दूसरी तरफ, पीछे की तरफ भी गए, वहां भी उन्होंने आवाज लगाई, नॉक किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। उसके बाद there was no doubt about it, the Petrovskys were gone. अब इस बारे में कुछ भी शंका नहीं थी कि पेट्रोव्स्की वहां से चले गए थे। How did they ever make amends? और ये अब जब वो लोग चले गए थे तो मैडी और पैगी ये सोच रहे हैं कि वो लोग कैसे अपनी चीजों को सुधार पाएंगे। They turned slowly
They turned slowly and made their way back down the hill. वो लोग धीरे से हल्के मन से पलटते हैं, भारी मन से पलटते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं पहाड़ी से उतरते हुए। When anyway said Peggy, she is gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. She might not even have won the contest otherwise. यहाँ पर हमें पैगी का एक बचपना दिखाई दे रहा है और वो बचपना इस चीज को दर्शाता है, ये एक स्टेटमेंट है जो इस चीज को दर्शाता है कि वो ज्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही है पैगी के शहर छोड़कर जाने के बारे में। क्योंकि आप देखिएगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 8 साल 10 साल के बच्चे होते हैं, उनमें आप देखिएगा एक गुण होता है कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो बार बार उस गलती की तरफ कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव दर्शाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पैगी भी वही करने का प्रयास कर रही है। वो इस पैराग्राफ में, इस हिस्से में कहती है कि चाहे कुछ भी हो, अब तो वो चली गई है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं जब उनसे मतलब वेंडा से उसके ड्रेसेस में बारे में पूछती थी तो शायद उसे अच्छी अच्छी कल्पनाएं मिल रही थी अपनी ड्राइंग्स के बारे में। शायद अगर मैं उससे उस ड्रेस के बारे में लगातार नहीं पूछती कि उसके पास कितने ड्रेसेस है, ये मजाक उड़ाती थी, तो अगर मैं वैसा नहीं पूछती तो शायद वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतती। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so bad. But that night she could not get to sleep. She thought about Brenda and her faded blue dress and the little house she lived in. ये जो पैगी ने कहा कि मेरे ही कारण या हम लोगों के कारण ही उसको अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाने की सोच उत्पन्न हुई और उस सोच के कारण ही वो अच्छी ड्रेसेस बना पाई और उन्होंने कंपटीशन जीता, इस सोच को मैडी ने अपने दिमाग में रख लिया। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा पॉजिटिव चीज था, ये इकलौता ऐसा चीज था जिसके कारण उसको गिल्ट का मतलब होता है अपराध बोध, उसे गिल्ट फील नहीं होगा। वो ये सोचकर अपने मन को बहलावा देने का प्रयास कर रही थी कि उनके प्रश्न पूछने के कारण ही वेंडा ये इनाम जीत पाई। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई, वो केवल वेंडा, उसके हल्के धुंधले ब्लू ड्रेस और उसका छोटा सा घर जिसमें वो रहती थी उसके बारे में वो सोच रही थी। And she thought of glowing pictures, those 100 dresses made, all lined up in the classroom. और वो उन 100 ड्रेसेस के डिजाइन के बारे में सोच रही थी जो उसके क्लास में लगे हुए थे। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought this was the hardest thing she had ever done. After a long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. तो वो आखिर में मैडी अपने बेड पर बैठ जाती है और अपने सिर को अपने हाथों में रखकर सोचती है। ये सोचने की जो प्रक्रिया है, शायद वो पहली बार इतना मेहनत करके कुछ सोचने का कोशिश कर रही थी। काफी सोचने के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंचती है कि अब वो किसी के साथ, गलत के साथ खड़ी रहकर उसका साथ देने वाली नहीं है। वो भी अब केवल चुपचाप रहकर कुछ न कहने वाला काम अब नहीं करेगी, वो बोलेगी और सही का साथ देगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Brenda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. अब उसके बाद वो सोच लेती है, वो फैसला करती है कि अब अगर वो किसी का मजाक उड़ाते हुए, किसी को
किसी के साथ गलत व्यवहार होता हुआ स्कूल में देखती है और उसका कारण उसका अजीब सा दिखना या उनका अजीब सा नाम होना, अगर इस कारण के कारण, ठीक है ना, इसको ठीक से समझते हैं कि अगर किसी का कोई कैसा दिखता है या उनका अजीब सा नाम है, इसके आधार पे यदि वो कभी फिर से किसी को देखती है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो अब वह चुप नहीं रहेगी, अब वो बोलेगी, चाहे इसके कारण पेगी से उसकी दोस्ती ही टूट क्यों न जाए। अब वैंडा के साथ कोई तरीका नहीं था चीजें ठीक करने का, लेकिन अब वो कभी भी किसी को इस तरह के कारणों से उदास होने नहीं देगी। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हम देखते क्या है कि पेगी और मैडी ये दोनों वैंडा से चीजें ठीक करने के लिए, क्योंकि उनको तकलीफ है, उनको दुख है। शुरुआत में तो मैडी को लग रहा था कि मैडी को लग रहा था कि पेगी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद उसे पता चलता है कि पेगी भी वही सोच रही है जो मैडी सोच रही थी। तो वो लोग फैसला करते हैं कि वो वैंडा के घर जाएंगे उसको बताने के लिए कि वो चीज प्राइज जीत गई है। साथ ही साथ वो अपने बिहेवियर के लिए शायद माफी भी मांगना चाहते थे, इसलिए वो लोग उसके घर जाने का फैसला करते हैं। वहां जब वो पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वो लोग वहां से आखिरकार चले गए। अब उस रात मैडी अपने घर में आकर बैठी हुई है और सोच रही है कि क्या करना चाहिए, और आखिर में वो एक फैसला लेती है कि आज के बाद वो कभी भी किसी भी कोई ऐसा जो किसी का मजाक उड़ा रहा हो उसके नाम के कारण या उसके दिखावा जो अपीयरेंस है उसके कारण, तो वो अब चुपचाप से उन बातों को नहीं सुनेगी, वो उसका जवाब देगी, वो उसको साथ नहीं देगी, चाहे इसके कारण उसे अब पेगी का दोस्ती ही क्यों ना होना पड़े। This is for today. The next video will follow. Thank you.